Hello students, today we are going to learn about different types of chemical reactions. So today our topic is types of reaction. Types of reaction. So the first one is combination reaction. Combination reaction. What do you mean by combination reaction? The combination reaction, note it down. What do we mean by combination reaction? The reaction in which two or more reactants, combine and form a single product. तो यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि हमारे पास रिएक्टेंट्स बहुत सारे हो सकते हैं. यहाँ पे रिएक्टेंट्स है बट देर आर नॉट प्रोडक्ट्स, देर इज ओनली अ प्रोडक्ट. क्या है बेटा? एक ही प्रोडक्ट है. तो रिएक्टेंट्स बहुत सारे लेकिन प्रोडक्ट सिर्फ एक है. देयर कैन बी मेनी रिएक्टेंट्स A प्लस B प्लस C प्लस D बट देर इज ऑलवेज बी ए सिंगल प्रोडक्ट. कि रिएक्टेंट 2 है, 3 है, 4 है, 2 या 2 से ज्यादा. देयर कैन बी 2 और मोर रिएक्टेंट्स बट देयर विल ऑलवेज बी ए सिंगल प्रोडक्ट. Then the reaction is known as combination reaction because here the reactions are combining. The reactants are combining with each other and forming a single product. For example, अगर इसका एग्जाम्पल हम देना चाहे तो बेटा C प्लस डी की जगह कोई हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले लेते हैं. C प्लस O2, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड. बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन दैट इज Mg प्लस O2 गिव्स MgO. बैलेंसिंग आपको खुद को करना है अगर कहीं पे जरूरत पड़े तो. See, here there are also two reactants and a single product. Two reactants, single product. There can be two or more reactants. But the product will always be a single product. यहाँ पे सिर्फ एक ही मिलना चाहिए. रिएक्टेंट आप चाहे उतने ले लो but the product is single. Then it is known as combination because they are combining with each other to form a single product. Another examples are calcium oxide plus water. Calcium oxide plus water, it forms calcium hydroxide and release a huge amount of heat. Here also heat is generated because it is a combustion reaction. Magnesium ribbon burns with a dazzling white flame. It means it is a burning, it means heat is released. Similarly, magnesium oxide plus water, so it will also form magnesium hydroxide. So here it is quite simple. What are the combination reactions beta? What are the combination reaction? The reaction in which there are two or more reactants and they combine and form a single product. See, there are many reactants but the products are always single. There is always a single product. If the product is always single, then it is known as combination reaction. जिनको लिखना है, I am dictating once again the definition of combination reaction. The reaction in which two or more reactants combine and form a single product, then it is known as combination reaction. The reaction in which two or more reactants combine and form a single product, then it is known as combination reaction. So it is quite simple. Here are the examples: combustion of carbon, combustion of magnesium, calcium oxide with water, magnesium oxide with water. This is calcium hydroxide. यहाँ पे खास करके most important question is calcium oxide plus water. Why it is most important? Because when calcium oxide reacts with water, it forms calcium hydroxide. वो तो सेम का सेम है, उसमें क्या अलग हुआ? So here the question is calcium oxide is known as quicklime. इसे क्या कहते हैं बेटा? Quicklime. This is simple water. This is known as calcium hydroxide and it is also known as slaked lime. कहीं पे भी अगर वर्ड लाइम यूज होता है, इट मीन्स इट इज कैल्शियम इन इट. कैल्शियम होता है, लाइम यानी चूनो. सो दैट इज कैल्शियम. लाइम जहां पे भी वर्ड यूज होता है कैल्शियम. सो व्हेन क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर, इट फॉर्म्स स्लेक्ड लाइम. व्हाइट वॉशिंग फॉर हाउसेस,
कि वॉल्स का व्हाइट वॉशिंग करने के लिए घर पे जब हम चूना लगाते हैं, धूप ज्यादा होती है तो छत पे चूना लगाते हैं, सो दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। बाहर से जो पैकेट खरीदते हैं बेटा, बाहर से जो पाउडर्ड फॉर्म में व्हाइट कलर का जो चूना हम खरीदते हैं, दैट इज सॉलिड फॉर्म, पाउडर्ड फॉर्म, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। नाउ व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड इज एडेड विद वाटर, उसमें हम कोई भी बाल्टी ऐसी छोटी मोटी प्लास्टिक की बाल्टी नहीं ले सकते बेटा। उसमें अगर हम प्लास्टिक बकेट ले रहे, देन इट शुड बी क्वाइट हार्ड। If we are taking a plastic bucket for the mixture of quicklime and water, then it should be quite hard and it should be a thermoplastic. क्यों? क्योंकि उसके ऊपर हीट का कोई इफेक्ट होना नहीं चाहिए। अगर वो हीट होगा, क्यों? क्योंकि जब ये करता है तो इसमें रिलीज होती है हीट, इट रिलीजेज हीट। तो इसी की वजह से, हीट की वजह से वो क्या हो जाएगा, बकेट गर्म हो जाएगा, प्लास्टिक बर्न हो सकता है, पिघल सकता है। क्लियर? सो व्हेन क्विकलाइम इज एडेड टू वाटर इट फॉर्म्स स्लेकलाइम एंड रिलीजेस हीट। तो कोई भी अगर हम बकेट लेंगे तो बकेट को छुओगे तो गर्म हो जाएगा, बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। सो इट इज ए विगरस रिएक्शन, इट रिएक्ट्स विगरसली एंड रिलीजेस ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट। तो गर्म हो जाएंगे, उबलने लगेगा। तो ये जो होता है वो एक्वियस, ये लिक्विड ही बनेगा। ये क्या बनेगा? एक्वियस, लिक्विड ही बनेगा। तो वहां पे जब ये सॉलिड था वो एक्वियस बन रहा है, लिक्विड बन रहा है। एक्वियस क्या होता है वो भी हम डिसाइड करते हैं, अभी देखते हैं बेटा। लेकिन जब ये सॉलिड में से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रहा है, इसीलिए हमें उसमें ध्यान रखना पड़ेगा, उससे हमें थोड़ा सा बचना पड़ेगा। सो डू टेक केयर व्हेन वी आर एडिंग क्विकलाइम विद वाटर। तो ये जो है इसमें हीट रिलीज होती है, एंड द रिएक्शन इन विच heat is released, the reaction in which heat is released is known as exothermic reaction, is known as exothermic reaction. See, then this all the reactions are exothermic because in each and every reaction heat is released. Hence combination reaction, most of the combination reactions are exothermic in nature. Most of the combination reactions are exothermic in nature. They are exothermic. And what do we mean by exothermic reaction? The reaction in which heat is generated. The reaction in which heat is generated. And in most of the combination reactions, heat is generated. Thus, most of the combination reactions are exothermic reactions. They are exothermic in nature. It means they release heat. Now, the most important one is quicklime. ये वाला बहुत बार पूछा जाएगा और हर बार पूछा भी जाता है। इस बार भी I am damn sure that it will be asked in the exam. कि यहाँ पे अगर हम देखें बोर्ड में हमारा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है that when calcium oxide is added to water it forms calcium hydroxide. It forms calcium hydroxide. तो ये जो सॉलिड फॉर्म का हम बाहर से खरीदते हैं, ये जो लिक्विड बन जाता है, यहाँ पे एक सॉल्यूशन बनता है, उसको हम लगाते हैं वॉल पे। उसको हम कहाँ पे लगाते हैं बेटा? वॉल पे। तो अभी समझो कि आप लाए थे कैल्शियम ऑक्साइड, आपने लगाया क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपने क्या लगाया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखना भाई, ध्यान से देखा यहां पे, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना बेटा, वो दीवार पे लगा हुआ है तो वो रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से। किससे रिएक्ट करता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड से। कहां से आया कार्बन डाइऑक्साइड? इट इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। इट इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। नाउ दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लोली रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड and forms calcium carbonate, and it forms CaCO3, CaCO3, that is calcium carbonate. This calcium hydroxide reacts with carbon dioxide and forms calcium carbonate. तो ये क्या बन जाता है बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट। नाउ अगेन दिस इज सॉलिड इन स्टेट। कैल्शियम कार्बोनेट दीवार पे जब एक बार लगा देते हैं तो कैसा हो जाता है? सॉलिड ही रहता है, सूख जाता है ना चूना। सो व्हाई दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एंड फॉर्म्स द लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जब हमने छत पे नया जब चूना लगाते हैं बेटा तो 2-3 दिन तो हम उसको देख भी नहीं सकते, उतना ज्यादा चमकता है। पहले 10-15 दिन तो क्या होता है? बहुत ज्यादा चमकता है धूप में। व्हाई? दिस इज अ शाइनी सरफेस, दिस इज अ शाइनी कंपाउंड, कि इसका वो है कि वो धूप में इतना व्हाइट हो जाता है कि उतना ज्यादा शाइन करता है। समझ में आया? एंड दैट कंपाउंड इज कैल्शियम कार्बोनेट, एंड कैल्शियम कार्बोनेट इज नोन एज लाइमस्टोन। दैट इज नोन एज लाइमस्टोन। See, do not get confused with the name of the calcium compounds. Calcium oxide, quicklime. Calcium hydroxide, slacklime. Calcium carbonate, limestone. बाहर से खरीदा calcium oxide, that is quicklime, added to the water and it forms slacklime.
नाउ स्लेक लाइम वाज अप्लाइड ऑन द वॉल्स ऑफ द हाउसेज और रूफ ऑफ द और सीलिंग एक्सेट्रा, कहीं पे भी लगाए. नाउ इट रिएक्ट्स विद द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एंड फॉर्म्स ए लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. बाहर का जो लेयर बना देता है, किसका बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट. उसको सूखने में 1-2 दिन, शाइन आने में 2 दिन लगते हैं, बिकॉज इट इज ए स्लो प्रोसेस. धीरे धीरे रिएक्ट करेगा. 2-3 दिन में कैल्शियम कार्बोनेट का एक अच्छा सा लेयर उसके ऊपर बन जाएगा, वॉल्स के ऊपर. सो दैट इज ए क्वाइट वाइट सब्सटेंस. तो वो स्लेक लाइम में से बन गया लाइमस्टोन. क्या बन गया बेटा? लाइमस्टोन. सो दिस इज अ शाइनी सरफेस. तो यहाँ पे याद रखना है आपको एक्स एंड वाई. द सब्सटेंस एक्स इज एडेड टू द वाटर एंड रिएक्ट्स विगरसली. क्वेश्चन क्या है? दैट सब्सटेंस X is added to the water and it reacts vigorously and releases heat. Now the and forms the substance Y. Now this substance Y on reaction with carbon dioxide. Now this substance Y reaction with carbon dioxide produce a limestone or produce a calcium compound with high melting point. इसका melting point बहुत ही high होता है. तो हमें पता चलना चाहिए these 3 compounds X, Y and Z should be कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट. और ऐसा पूछ सकते हैं द सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग. द सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग. तो सब्सटेंस कौन सा होता है? व्हाइट वॉशिंग में क्या यूज होता है? कैल्शियम ऑक्साइड. क्या यूज होता है बेटा? कैल्शियम ऑक्साइड. अगर ये तीनों ऑप्शन में दिए हैं तो हम कौन सा टिक करेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स. यहाँ पे नाम क्या है उसका? क्विक लाइम. क्या नाम है बेटा उसका? क्विक लाइम. सो क्विक लाइम इज यूज्ड फॉर द व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स. तो ये बहुत ही सिंपल से रिएक्शन है बेटा, आपको याद रखने हैं. बहुत सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जांपल्स आप खुद भी लिख सकते हो. तो आज का होमवर्क क्या रहेगा? हम जितने भी टाइप के रिएक्शंस पढ़े उसके 10 एग्जांपल्स आपको लिखने हैं. क्या लिखना है बेटा? 10 एग्जांपल्स. और एग्जांपल सिर्फ ऐसे नहीं लिखते हैं. दिस इज अ सिंपल इक्वेशन, आपको उसे बैलेंस करना है. उसमें जो भी स्टेट लिखने हैं, क्लियर? हीट रिलीज होती है तो प्लस हीट लिखना है, क्लियर? तो चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कैसे हम लिखना है, कैसे हमें कोई भी चीज लिखनी है. याद करो कि हम केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं. द केमिकल इक्वेशन हैज 2 पार्ट्स. केमिकल इक्वेशन हैज 2 पार्ट्स. वन आर नोन एज, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आर रिएक्टेंट्स, बीच में एरो, देन प्रोडक्ट्स, What are reactants and products? There are the 2 parts of the chemical reaction. तो अगर हम यहाँ पे reactants का एग्जाम्पल लेते हैं N2 plus H2, then it forms NH3. N2 means nitrogen, H2 means hydrogen, NH3 means ammonia. This is the formula of ammonia. And all the 3 are in the gaseous state. All the 3 are in the gaseous state. तो यहाँ पे हमने लिख दिया गैस, गैस, गैस. Clear? Now these 3 are in the gaseous form. Nitrogen is a gas, hydrogen is a gas, and even ammonia is a gas. Ammonia gas है. Now nitrogen and hydrogen when react with each other, it forms ammonia. It forms ammonia. Just for information, अगर कहीं पे पूछा जाए, then it is known as Haber's process. क्या कहते हैं बेटा? Haber's process नाम है इसका. क्या नाम है बेटा? Haber's process. So ammonia is obtained by the reaction of nitrogen and hydrogen by Haber's process. So now nitrogen and hydrogen are present in the atmosphere from thousands of years. हजारों सालों से nitrogen and hydrogen are present in the atmosphere, but they do not react with each other. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन एक दूसरे से रिएक्ट करते नहीं है, वरना तो हेबर्स प्रोसेस का काम ही क्या था? सो दे रिएक्ट विथ ईच अदर एट स्पेशल कंडीशंस. दे रिएक्ट विथ ईच अदर एट स्पेशल कंडीशंस. वो ऐसे ही रिएक्ट नहीं करते, वो किसी के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं. समझ में आया? आप खुद हो, आपके पास टेक्स्ट बुक है, पढ़ सकते हो? बिल्कुल नहीं, वरना तो पढ़ लिया होता. अगर आपको बोला जाए कि पूरा क्लास बैठा है, फॉर एग्जाम्पल आप सब लोगों को बोला जाए आप खुद से पढ़ो, पढ़ोगे? बिल्कुल नहीं पढ़ोगे, दोस्तों से बातें होती रहेगी. बट अगर कोई स्ट्रिक्ट टीचर आपके ऊपर बैठे है, तो एकदम डंडा लेके बैठे कि कोई हिला तो ये फटाक से दिया, तो सब लोगों का पढ़ने में ध्यान रहेगा. तो टीचर ना तो पढ़ा रहे हैं, ना तो खुद पढ़ रहे हैं, उनके प्रेजेंस से सिर्फ काम हो रहा है. टेक्स्ट बुक आपके पास है, पढ़ना आपको खुद को है.
टेक्स्ट बुक आपके पास है, पढ़ना आपको खुद को है, बट अगर आपको कोई ऐसे ही बोल के चला जाए कि हाँ अपने आप से पढ़ो, तो आप नहीं पढ़ोगे। बट अगर आपके सामने कोई डंडा लेके बैठा है कोई टीचर और एकदम स्ट्रिक्ट है कि वो फटाक से दे देंगे पता ही है, तो फिर क्या होगा, हम पढ़ेंगे। तो वो क्या हुआ, दैट वी रीड, दैट वी कैन एजुकेट आवरसेल्व्स एट स्पेशल कंडीशंस। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा होता है कि टीचर ना तो रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, फिर भी रिएक्शन का काम होता है, तो भी काम तो होता है। सो सिमिलरली देयर आर फ्यू सब्सटेंस व्हिच डू नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, क्यों रिएक्शन में पार्ट नहीं लेंगे, लेकिन रिएक्शन को करने में मदद जरूर करेंगे। इट इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन, उसे हम कहते हैं इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। हम स्पीड नहीं बोलते रिएक्शन के लिए बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। स्पीड ऑफ रिएक्शन की जगह क्या बोलेंगे बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन। एंड देयर आर फ्यू सब्सटेंस फॉर ईच एंड एवरी रिएक्शन दैट इंक्रीजेस द स्पीड, दैट इज इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। एंड फॉर दिस प्रोसेस इट इज आयरन, Fe, कि Fe के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, Fe के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। नॉट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ Fe, उसके लिए कोई स्पेशल टेम्परेचर भी चाहिए, प्रेशर भी चाहिए। क्या क्या चीजें चाहिए बेटा, यहाँ पे कोई स्पेशल टेम्परेचर होना चाहिए और प्रेशर भी मेंटेन होना चाहिए। इफ दिस थ्री कंडीशंस आर फुलफिल्ड, देन एंड देन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन विल रिएक्ट एंड फॉर्म दी अमोनिया। तो यहाँ पे मैं आपको क्या सिखा रहा था बेटा, कि इस तरीके से पूरा इक्वेशन कंप्लीट होता है। सिर्फ N2NH2 gives NH3 लिखने से मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको फुल मार्क्स चाहिए। देन यू हैव टू राइट N2 इन ब्रैकेट गैस प्लस H2 इन ब्रैकेट G, दैट इज गैस, एरो करके लिखा NH3, एरो को पहले से ही थोड़ा बड़ा करो। व्हाई, बिकॉज यू नीड टू राइट कैटालिस्ट है, कोई कंडीशन है। दिस आयरन विच डू नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन बट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन इज नोन एज कैटालिस्ट। इस Fe को क्या कहते हैं बेटा, Fe इज ए कैटालिस्ट। हर एक रिएक्शन में कैटालिस्ट अलग होता है। फॉर अवर रिएक्शन बाय द हेबस प्रोसेस, जैसे हम अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं, हियर द कैटालिस्ट इज Fe। Fe मींस आयरन, लोहा। सो इट इज ए कैटालिस्ट। एंड व्हाट इज कैटालिस्ट? कैटालिस्ट इज द सब्सटेंस व्हिच डू नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, बट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। देखो, ना तो रिएक्टेंट साइड में Fe है, ना तो प्रोडक्ट साइड में Fe है। Fe रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है, बट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ Fe द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज्ड, बट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ Fe द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज्ड। तो इतनी सी चीजें आपको याद रखनी है। Fe इज ए कैटालिस्ट एंड दिस इज ए हेबस प्रोसेस। तो यहाँ पे Fe कैटालिस्ट लिखना है तो एरो पहले से ही बड़ा करो। टेम्परेचर दिखाना है, प्रेशर दिखाना है, कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल 300 डिग्री सेल्सियस, 200 बार प्रेशर, क्लियर, या तो फिर 150 पास्कल प्रेशर। प्रेशर का यूनिट के साथ लिखो, टेम्परेचर को अपने यूनिट के साथ लिखो। कैटालिस्ट कौन सा यूज हो रहा है? कैटालिस्ट जनरली हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। कैटालिस्ट किस में लिखा जाता है? स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। और कोई कंडीशन है तो ये वाली फुलफिल वहां पे एरो के ऊपर लिखो। अगर हीट जनरेट होती है तो प्लस यहाँ पे हम हीट लिखते हैं। हालांकि इस प्रोसेस में नहीं हो रहा है, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पे हम हीट लिखते हैं। अगर टेम्परेचर दिया है तो यहाँ पे हम टेम्परेचर लिखते हैं। अगर समवो कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, बेटा, तो हम क्या करेंगे, एरो के ऊपर कि सपोज कोई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट है, उसको सिर्फ हीट करना है, कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर की जरूरत नहीं, सिर्फ हीट करो, तो एरो के ऊपर आप ट्राइंगल कर सकते हो। अगर ट्राइंगल नहीं करना है तो आप हीट लिख दो। ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल को बोला जाता है डेल्टा। क्या बोलते हैं बेटा? डेल्टा। एंड डेल्टा मींस हीट इज सप्लाइड, क्लियर। एंड डेल्टा मींस हीट इज सप्लाइड। तो यहां से हम ऐसा देख सकते हैं। नाउ अदर थिंग्स वेयर स्टेट कि S लिखते हैं तो S का मतलब क्या होता है? सॉलिड इन स्टेट। फिर क्या लिखते हैं बेटा? लिक्विड। और फिर क्या लिखते हैं? गैस। तो ये तीन चीजें तो हमारे लिए बहुत सिंपल है, बट द अनदर थिंग इज AQ, उसे कहते हैं एक्वियस। क्या बोलते हैं बेटा? एक्वियस। तो एक्वियस का मतलब क्या होता है? तो यहां पे देखते हैं बेटा, देखो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl, उसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो अगर बोतल में भरा हुआ है 100% हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और जनरली लिक्विड में होता है, लेकिन HCl को H2O के साथ मिला दो। HCl में हमने क्या डाला? पानी डाला। इट इज ए मिक्सचर ऑफ HCl एंड H2O। और मिक्सचर को क्या नाम दे सकते हैं? इट इज ए सॉल्यूशन। जब दो लिक्विड मिलते हैं जनरली उसका हम सॉल्यूशन बोल देते हैं। नाउ इट इज ए सॉल्यूशन ऑफ HCl। किसका सॉल्यूशन है? HCl का। इसीलिए मैं यहां पे लिखूंगा HCl,
एक्वियस सॉल्यूशन, इट इज ए एक्वियस सॉल्यूशन। तो जनरली जहां पे भी वर्ड एक्वियस आता है उसका मतलब होता है पानी वाला सॉल्यूशन, उसमें पानी डाला हुआ है। इट डजंट मैटर कि कितना पानी है, कि कभी कभार ऐसा हो सकता है कि पानी बहुत ज्यादा और HCl बहुत थोड़ा है, then and then also it is known as aqueous solution, then and then also it is known as aqueous solution of HCl। पानी कम है और HCl ज्यादा है तो भी HCl का aqueous solution, पानी ज्यादा है HCl कम है, then and then also it is known as aqueous solution of HCl। तो इतनी सी चीजें बेटा आपको याद रखनी है। यहाँ पे क्या याद रखना है कि भाई जो HCl है वो एक्वियस सॉल्यूशन कब बनेगा। सिमिलरली नमक होता है, नमक का फॉर्मूला क्या है बेटा, NaCl। जब डिब्बे में होता है तब कौन सा होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन इसमें आप पानी डाल दो, अगर उसमें पानी में हम डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, एक्वियस सॉल्यूशन, दैट इज द सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन दैट इज आल्सो नोन एज एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट NaCl। जनरली हम एक्वियस वर्ड खा जाते हैं, जहां जहां पे भी वर्ड सॉल्यूशन यूज होता है, इफ द वर्ड सॉल्यूशन इज यूज्ड इट मींस इट इज एक्वियस सॉल्यूशन। एक्वियस जनरली लोग बोलते भी नहीं है और काफी लोग लिखते भी नहीं है, हर बार खा जाते हैं। सो इट इज एन एक्वियस सॉल्यूशन। एक्वियस सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल होता है, एक्वियस सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल होता है बेटा, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, याद रह जाएगा। कब क्या चीजें लिखनी है बहुत ही ईजी होती है, सिर्फ प्रैक्टिस से याद रहेगा। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था जब ये सिखाया था तब कि जनरली कोई मेटल आता है तो हमेशा मेटल कौन से फॉर्म में होता है बेटा, सॉलिड फॉर्म में होता है। कौन से फॉर्म में होता है बेटा, सॉलिड फॉर्म में। तो यहां पे जिनको लिखना है लिख लो कि भाई लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, सिल्वर, gold, platinum, and then we can write scandium, titanium, clear, vanadium, iron, manganese, cobalt, nickel, copper, zinc. So these all are the metals and all of them are solid। जब अकेले होते हैं तब, जब अकेला सिर्फ ऐसा नाम आता है ना कि भाई HCl प्लस Zn, तो ये अकेला बोलते हैं, इसमें कोई कंपाउंड के फॉर्म में नहीं है, दिस इज ए सिंगल एलिमेंट, तब हम क्या लिखेंगे हर बार इसको, सॉलिड। क्या लिखेंगे बेटा, सॉलिड। समझ में आ गया, दे आर सॉलिड इन स्टेट। नाउ दूसरी चीज है, बहुत ही सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। H2, O2, N2, Cl2, F2, Br2, CO2, SO2, NO2 एक्सेट्रा, जितने भी ऑक्साइड्स है, डाई स्टेट है, 2 आता है जहां पे भी, वो सारे कैसे है, गैस है। सारे कैसे है बेटा, गैस है। सारे कैसे है बेटा, गैस है। क्लियर। नाउ बाकी कोई कंपाउंड आता है जिसके आगे H है, जिसके आगे क्या है बेटा, H, जैसे HCl, H2SO4, H2CO3, HNO3, H3PO4, दिस ऑल दी, जिसके आगे H आता है ना बेटा, उन्हें हम कहते हैं एसिड्स। ये सारे क्या है बेटा, एसिड्स है, और वो सारे हमेशा लिखेंगे हम एक्वियस फॉर्म में। कौन से फॉर्म में बेटा, एक्वियस फॉर्म में। ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रस एसिड होता है, सल्फरस एसिड होता है, H2SO3 को सल्फरस एसिड कहते हैं, HNO2 को नाइट्रस एसिड कहते हैं, एंड ऑल द एसिड्स आर ऑलवेज इन द एक्वियस फॉर्म इन द रिएक्शन। नाउ इसके साथ क्या हो सकता है, बेस भी हो सकते हैं। बेस क्या होता है, बेस मतलब NaOH। हमने लोअर स्टैंडर्ड्स में एसिड एंड बेस की प्रॉपर्टीज देखी है, यहाँ पे हमारे पास एक चैप्टर भी एसिड एंड बेस सॉल्ट का, लेकिन वो हम डिटेल में नहीं जाएंगे। अभी हम क्या करेंगे, इन सभी सॉल्ट्स के बारे में देखेंगे बेटा। एसिड्स है, बेस है, जिसके पीछे OH आता है, आगे H आता है तो एसिड, पीछे OH आता है तो उसे क्या कहेंगे, बेस। NaOH, KOH, ZnOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस। अभी हमने लिया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर हमने लिया था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऑल ऑफ देम आर बेस एंड बेस आर आल्सो एक्वियस। उनके पीछे भी क्या आएगा, एक्वियस। फिर आते हैं सॉल्ट, एंड सॉल्ट जिसके आगे ना तो H है ना तो पीछे OH है, जैसे कि NaCl, जैसे कि CuSO4, जैसे कि Na2SO4, जैसे कि MgCl2, ना तो आगे H है ना तो पीछे OH है, ना तो H ना तो OH।
तो ये सारे सॉल्ट्स भी क्या होंगे, 90% सॉल्ट्स आर आल्सो एक्वियस, 90% सॉल्ट्स आर आल्सो एक्वियस, कि वो हमेशा पानी के साथ ही होते तभी वो रिएक्ट कर पाते, वरना रिएक्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट है तो जनरली क्या लेंगे बेटा, एक्वियस। सॉलिड्स है तो क्या लेंगे, सॉलिड। और ये सारे गैसेस है, डाई स्टेट में है तो देखना ही नहीं है कि F2 है तो गैस ही होगा, बाकी का तो याद रहना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होते हैं, गैस होते हैं। क्या होते हैं बेटा, गैस होते हैं। तो उतना आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है बेटा। क्लियर, सिंपल। फिर और चीजें हम क्या देख सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड्स, नॉन मेटल ऑक्साइड्स जैसे गैस होते हैं तो मेटल ऑक्साइड सॉलिड होते हैं। कौन से मेटल, इन मेटल के ऑक्साइड, कि जिंक है अगर सॉलिड है तो जिंक का ऑक्साइड भी सॉलिड, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी सॉलिड, कॉपर ऑक्साइड भी सॉलिड, सोडियम ऑक्साइड भी सॉलिड। तो ये सारे कैसे होते हैं बेटा, सॉलिड होते हैं। अगर ये नॉन मेटल के ऑक्साइड्स अगर गैस है तो मेटल के ऑक्साइड्स क्या होंगे, सॉलिड। बाकी कोई एसिड हो, बेस हो या सॉल्ट हो, कैसे पता चलेगा एसिड है, बेस है या सॉल्ट है, आगे H है तो एसिड, पीछे OH है तो बेस, अगर आगे H भी नहीं है पीछे OH भी नहीं है तो सॉल्ट। एंड ऑल द थ्री आर एक्वियस इन स्टेट इन द 99% केसेस, 90% भी नहीं, 99% केसेस में एक्वियस होते हैं। कुछ फ्यू एक्सेप्शंस है वो आपको याद रखने। इट मींस 99% चीजें याद नहीं रखनी है, सिर्फ 1% चीजें आपको याद रखनी है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं इट वुड बी क्वाइट सिंपल कि हर बार एक्वियस। फिर भी ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप कहीं पे कंफ्यूज हो जाते हो कि ये वाले सॉल्ट में एक्वियस लिखे या नहीं लिखे, अगर आपको कुछ याद नहीं है, याद करने की ट्राई करो, लेकिन फिर भी याद नहीं आता है तो आंख बंद करके एक्वियस लिख दो। क्या लिख देना है, AQ। AQ मतलब एक्वियस, एक्वियस सॉल्यूशन। तो हर बार सॉल्यूशन वर्ड यूज होता है, एक्वियस वर्ड यूज होता नहीं है। सो हर बार अगर कहीं पे लिखा है द सॉल्यूशन ऑफ HCl, तो सॉल्यूशन ऑफ HCl है तो हमेशा उसके क्या लिखना है, AQ, बिकॉज इट इज एन एक्वियस सॉल्यूशन। एक्वियस लोग वर्ड खा जाते हैं बट इट इज एक्वियस सॉल्यूशन, नॉट ओनली सॉल्यूशन। क्लियर, तो इतनी चीजें याद रखनी है। एंड वी हैव लर्नड वन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एंड यू हैव टू राइट द 10 एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन डिटेल विच स्टेट, पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन होना चाहिए, कंपाउंड के नीचे उनके नाम्स होने चाहिए। क्लियर बेटा, थैंक यू।